Assalamualaikum grade 7. How are you? I hope you all are fine and doing well. Okay students, so today we are going to start our Oxford Progressive English and we are going to start our unit number 1, that is elephants, and lesson number 1, that is fiction. Okay students, so do you know the term fiction? What is meant by fiction? What is fiction? You have read this term in grade 6. Okay students, fiction is something that is not true. It is a story that is of imagination. An imaginative story is called fiction. The title of this story is Revenge. What is revenge? जब हम किसी से बदला लेते हैं, कोई भी पर्सन हमें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाता है, जब हम उससे बदला लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवेंज. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस लेसन. Okay students, an old Burmese man tells this first person story which takes place in the teak forest of Burma, that is now Myanmar, when it was a British Crown colony. An old Burmese man tells this first person story. First person story, that a person is sharing his experience. An old Burmese man tells this first person story which takes place in the teak forest. Teak means wood that is used in construction. तो एक ओल्ड बर्मीज मैन है, बर्मा का रहने वाला बर्मीज मैन है. वो अपनी जो स्टोरी जो उसके साथ हो चुकी है, उसने वो उस इंसिडेंट को एक्सपीरियंस किया हुआ है. ही इज शेयरिंग विद अस. व्हेन इट वाज अ ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी, जब ब्रिटिश का दौर था, जब बर्मा जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी. एज यू नो दैट जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट नहीं हुए थे, सब कॉन्टिनेंट था, तब ये भी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी. Elephants were used to drag the immense tree trunks. Immense means huge. Immense tree trunks into the rivers for transportation. The logs frequently jammed, and then an elephant would use its gills and weight to unblock the jam. अब क्या होता था कि तब एलिफेंट्स का जो है वो यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टेशंस के लिए. एज यू नो दैट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो या तो पहले के वक्त में या शिप से होती थी, या फिर जो है वो ट्रीज जो वुड है उसकी मदद से होती थी, वुड के जो लॉग्स होते थे उनकी मदद से होती थी. तो ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि जो वुड के लॉग्स हैं, ठीक है, वो स्टक कर जाते थे, वो जैम हो जाते थे, जिसकी वजह से एलिफेंट्स को बुलाया जाता था ताकि वो उस जो ट्री ट्रंक्स हैं, ह्यूज ट्री ट्रंक्स हैं, उनको वो अनब्लॉक कर सकें. At this time, the Burmese workers were under the control of an English overseer. Overseer means supervisor. Mackay, an unpleasant young man whom the men called Mackay Taken. उस वक्त में जो बर्मीज वर्कर्स थे, ठीक है, वो इंग्लिश ओवरसीयर मैके के कंट्रोल में थे. द डे बिफोर द स्टोरी स्टार्ट्स, मैके हैड ordered the Burmese overseer to send in one of his elephants to unblock a mass of jammed logs. जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है उससे एक दिन पहले मैके ने ऑर्डर किया बर्मीज ओवरसीयर को कि वो किसी पर्सन को उसके एलिफेंट के साथ जो है लॉग्स को अनब्लॉक करने के लिए भेजे. Afraid to disobey Mackay, the Burmese overseer had ordered his nephew on this gentle elephant shoe dog to obey this very dangerous order. मैके को ओबे करने के लिए, इस डर से कि वो डिसोबे ना कर सके, उसने अपने नेफ्यू को उसके एलिफेंट के साथ, जो कि एक फीमेल एलिफेंट था, नेम्ड इज शू डॉग,
उसने उसको भेजा इस डेंजरस काम के लिए. Whilst carrying out the order, the nephew was killed by a falling log. ये काम करते हुए उसके ऊपर, उसके नेफ्यू के ऊपर जो है वो एक लॉग गिरी और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. The storyteller began his story just after the nephew has been buried. स्टोरी टेलर ने ये स्टोरी तब स्टार्ट की जब नेफ्यू को दफन कर दिया गया था. Okay, students. So here is paragraph number 1. I was staying the night as always in the Hassin Ox tie. अब स्टोरी टेलर जो ये स्टोरी बता रहा है वो अपने लिए आई का वर्ड यूज कर रहा है. अब वो क्या बता रहा है कि वो नाइट को जो स्टोरी टेलर है उसने नाइट को स्टे किया हसन ऑक्स टाई, हसीनॉक के जो है टाई पे. We ate a sparse meal. Do you know what is sparse? A little. We ate a sparse meal and afterwards I stepped outside to smoke a cheroot. Cheroot is a kind of cigar. अब क्या हुआ कि इन लोगों ने थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद जो स्टोरी टेलर है वो सिगार के लिए जो है वो बाहर चला गया. Usually a camp is full and bustling at that time of day, but now I saw to my astonishment. Astonishment means amazement. हैरान हो गया वो. That there was no one about. I could hear nothing but frogs and owls and the feathery flapping of great jungle moths. अब किस बात से जो स्टोरी टेलर था वो हैरान हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जिस वक्त वो बाहर गया था कैंप जो था वो बहुत ज़्यादा क्राउडी रहता था, लेकिन वो हैरान रह गया जब वहाँ पर कुछ भी नहीं था और स्टोरी टेलर जो है वो कुछ भी कोई आवाज़ नहीं सुन सकता था सिवाय फ्रॉग्स के, आउल्स के या फिर जो जंगल के मॉथ्स थे इंसेक्ट टाइप उनकी फीदरी फ्लैपिंग से. Absent also was that most familiar and reassuring of a camp's sound, the tinkling of elephant's bell. Absent also was that most familiar and reassuring of a camp's sound, the tinkling of elephant's bell. अब ज़्यादातर क्या होता था उस कैंप में जो एलिफेंट्स की बेल है, ठीक है, वो सुनाई देती थी. इसकी वजह से अगर मतलब एब्सेंट उधर किसी चीज़ की एब्सेंस होती भी थी तो एलिफेंट्स की जो बेल है, देन द अदर ओसिस had begun to flee the camp taking their elephants with them. अभी जो नेफ्यू की जो उसको दफनाया था और उसकी जो सॉइल थी वो भी अभी बिल्कुल ठीक से टैम्प नहीं हुई थी, वो भी अभी ठीक से उसको रखा नहीं गया था कि जितने भी एलिफेंट्स हैंडलर थे, ऑसिस मीन हैंडलर्स, जितने भी एलिफेंट्स हैंडलर्स थे सबके सब अपने एलिफेंट्स को लेकर जो है वो कैंप से चले गए. नाउ कैन यू टेल मी दैट व्हाई दे fled the camp? Why they began to fled the camp? Because they became frightened. वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे. Next. Okay, student. Paragraph number 2 is the only elephant that was still in camp's vicinity was Shoe Dog, the dead man's mount. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि vicinity means नियर बाय एरिया ऑफ अ प्लेस. अब कैंप का जितना भी नियर बाय एरिया था वहाँ पे सिर्फ एक एलिफेंट था जो शू डॉग था, द डेड मैन्स माउंट. डेड मैन कौन था? नेफ्यू. नेफ्यू का जो राइडिंग एलिफेंट था शू डॉग, वो एक फीमेल एलिफेंट है, वो सिर्फ वहाँ पर रह गया था. द हसीनॉक हैड टेकन चार्ज ऑफ हिज नेफ्यूज राइडरलेस एलिफेंट आफ्टर द एक्सीडेंट. हसन ऑक ने टेकन चार्ज मीन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी अपने नेफ्यू के एलिफेंट की. शी वॉज रेस्टलेस, ही सेड, एंड नर्वस, फ्रीक्वेंटली फ्लैपिंग हर ईयर्स एंड क्लॉइंग द एयर विद द टिप ऑफ हर ट्रंक. अब यहाँ पर जो फीमेल एलिफेंट थी अब वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और बहुत ज़्यादा बेचैन थी और इस नर्वसनेस में वो एयर में क्लॉ कर रही थी अपनी ट्रंक की टिप को. This was neither uncommon or unexpected, for the elephant is all above a creature of habit and routine, so pronounced an upheaval as the
absence of a long familiar handler can put even the gentlest of elephants out of temper, often dangerously so. अब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि ये एक नॉर्मल सी बात थी कि जब कोई एनिमल का जो मतलब हैंडलर होता है, अगर उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी एनिमल हो तो वो बिल्कुल नर्वस हो जाता है और रेस्टलेस हो जाता है. तो अब क्या था, और इस तरह का जो एनिमल होता है बहुत डेंजरस भी साबित हो सकता है. Okay students, so paragraph number 3 is, this being the case, the Hassan Oak had decided not to allow Shoe Dog to forage through the night. What is forage? Means food for cattle. Search for food, food for cattle. Was the rule. अब जो हैसन ओक था उसने डिसाइड किया कि वो शू डॉग को अलाउ नहीं करेगा कि उसको नाइट के लिए बाहर छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने लिए फूड को सर्च कर सके जैसा कि रूल था. इंस्टेड ही हैड लेड हर टू अ clearing some half miles distance from the camp and supplied her with a great pile of succulent treetop branches. अब उसने क्या किया, वो उसको एक कुछ माइल दूर ले गया कैंप से और उसको जो है वो कुछ जूसी किस्म के उसने ब्रांचेस उसको प्रोवाइड किए. देन ही हैड tethered her securely. What is mean by tethered? To tie, बांधना, चेन या रॉप की मदद से बांधना. Her securely between two immense and immovable trees. अब उसने क्या किया कि शू डॉग को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के ट्री के साथ टाई कर दिया. टू बी doubly sure of keeping her bound, he had used not the usual lightweight fetters. Fetters means chains with which you can tie an animal. Fetters with which elephants are shackled at night. उसने ना, अब आम तौर पर क्या होता है कि जानवर को टाई करने के लिए रात के टाइम ताकि वो कहीं भाग नहीं जाए, fetters, but the heavy iron towing chains that are employed in the harnessing of logs. Harnessing means control, and towing chains a kind of ring, a kind of heavy chains. अब उसने क्या किया कि नॉर्मली फेटर्स के साथ उसको टाई नहीं किया बल्कि हैवी आयरन टोइंग चेन्स के साथ उसको टाई किया ताकि वो बिल्कुल भी वहाँ से किसी भी तरह जो है वो भाग नहीं सके. दिस ही सेड वाज अ प्रिकॉशन. ये उसने कहा कि क्या है, एक प्रिकॉशन है, एक एहतियात है. ओके स्टूडेंट्स, सो टिल हेयर your lesson is in next lesson we will move on paragraph number 4. Take care till then.